بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے، آپ نے اس ویلاگ کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت پورے مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ سائفر کیس بڑھ گیا ہے، سائفر کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رکی، بات بہت آگے جا چکی ہے اور طاقتوروں کے ہاتھ سے اس وقت گیم نکل گئی ہے۔ اور قیدی نمبر 804، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے کہ عمران خان آج سرخرو ہوا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سائفر کیس سے بھی جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے بھی بڑی خبریں ہیں کہ اب جناب صورتحال اور گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر پر آج جناب ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں، ان کا یہ جو سزا ہے وہ معطل نہیں ہوئی، بلکہ پورے کا پورا جو سائفر کیس ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب رہا ہوں گے، شاہ محمود قریشی صاحب کب رہا ہوں گے۔ اب جناب اندر کی خبر سامنے آ چکی ہے، رہائی کی تاریخ سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسی اب خطرے میں پڑ چکی ہے، وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ عمران خان کے پاس دوبارہ اقتدار آنے جا رہے ہیں، وہ دوبارہ اس سسٹم کے اندر واپس آنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت اچھی خبر آج سامنے آئی ہے، اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ جنرل آصف مری صاحب نے کس طرح سے بازی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سائفر کیس کی بات کر لیتے ہیں کہ جب سائفر پاکستان میں آیا، بیسیکلی سائفر تو پھر وزارت خارجہ کو نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ وزارت خارجہ تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے انڈر آتی ہے۔ سائفر ان کے پاس بھیجا گیا تھا جو اس ملک کے طاقتور تھے، یا پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا تھا کہ میں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش نہیں کی تھی۔ اور پھر یہ بھی جھوٹ بولا گیا تھا کہ سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، سائفر تو آیا ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے تو وہ جو کاپی لہرائی تھی، وہ جو کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ عمران خان نے ویسے کو فیک کاغذ لہرا دیا تھا۔ آج جناب پروسیکیوشن نے عدالت میں کھڑے ہو کر بتایا کہ سائفر کیس جو تھا، وہ جو سائفر عمران خان نے ان کے جو مدرجات بتائے تھے وہ بالکل درست تھے۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج یہ استدعا کی گئی تھی پروسیکیوشن کی جانب سے، یعنی کہ ریاست کی جانب سے، کہ اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے، فیصلہ ختم نہ کیا جائے۔ لیکن جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورے کے پورے سائفر کو جناب انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جناب جج ابوالاسطیٰ ذوالقرنین نے دیا تھا، اور انہوں نے 10 سال قید کی عمران خان کو سزا دی تھی، اور یہ سب سے خطرناک ترین کیس تھا۔ اور اس کیس میں جناب عمران خان کو سزائے موت جیسے دفعات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور یہ وہی کیس تھا جس کے بارے میں سابق آرمی چیف نے تقریر بھی کی تھی کہ عمران خان نے سائفر جیسے من گھڑت بیانی کو استعمال کر کے ملک میں جانی کیفیت پیدا کی۔ یہی بات سابق ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی تھی کہ سائفر کیس تو ایم ہی سائفر تھا نا۔ لیکن آج کیا جناب آپ ان لوگوں کو ٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے؟ سوال ہے، عام سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریاست کے پورے نظام کے اوپر اس وقت سوالیہ نشان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے کہ سائفر تو آیا تھا، عمران خان کی حکومت تو گری تھی، سازش بھی ہوئی تھی، لیکن کیا پھر اسمبلیاں وہ والی بحال کی جائیں جو قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اور سائفر کو اڑا دیا تھا؟ کیا وہاں سے دوبارہ اسمبلیاں چلائی جائیں، پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے واپس آتی ہے؟ تو جناب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سائفر کیس میں آج جو عدالت کے اندر ہوا، اپیلوں پر سماعت ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ چیف جسٹس عامر فاروق ان کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے، اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ، اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ ابھی تک آئین اور قانون کو پیروں تلے روند رہے ہیں، اور آپ ابھی تک جو ہے وہ ایک متصابانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف۔ جناب آج جو ہے وہ فیصلہ جو سنایا گیا، دلائل کا آغاز ہوا۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر جو آج کے مین آف دا میچ ہیں، انہوں نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ اعظم خان نے سائفر عمران خان کو دیا اور اس سے متعلق کوئی دستاویزات نہیں ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے متعلق تو آپ کے کلائنٹ کا اپنا اعتراف بھی موجود ہے۔ سلمان صفدر نے یہ موقف اپنایا کہ یہ تو پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات ثابت کریں، قانون بڑا واضح ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور اس دوران ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی
की अदालत पहुंच गए और इस मौके पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सरकारी तौर पर मुकर्रर वकला सफाई से अदालत ने मुकालमा करते हुए पूछा कि आपने इससे पहले सजाए मौत का कोई ट्रायल किया है और इन मुकदमात की तफसील जमा करवा दें। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपना दलाइल जारी रखते हुए कहा, ये कैसा चार्ज है कि साइफर ने पास रख लिया, गुम गया या किसी को दिया गया? अगर साइफर गुम गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा था? फिर तो ये चार्ज नहीं लगेगा ना। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि साइफर डॉक्यूमेंट, साइफर मतन रिकॉर्ड पर नहीं आया। राजा रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को कहते रहे क्लासिफाइड जो सिक्योरिटी बुक नहीं दे सकते, लेकिन हामिद अली शाह साहब ने कहा कि बुक दे सकते हैं क्योंकि रूल्स मौजूद हैं। उन दलाइल के साथ ही बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरी करने की उनको इस्तदा कर दी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किए कि गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर साहब, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बता दें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी साहब की जानिब से कहा गया केस को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता, हम आपसे कानून तौर पर मुआवजा चाहते हैं। इस मौके पर बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से साइफर केस रिमांड बैक करने की मुखालफत की गई और उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि जो भी ट्रायल कोर्ट में गलतियां हुई हैं वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से की गई हैं। केस रिमांड बैक करना आइन के आर्टिकल 13A की खिलाफ वर्जी होगी। इसके साथ सलमान सफदर ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए। तो उसके बाद जनाब 30 जनवरी को इमरान खान को सजा दी गई थी। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डेप्यूटी एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं उससे इस्तफसार किया, इस वक्त आपने कितनी देर दलाइल दिए थे? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि थोड़ी देर दलाइल दिए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा थोड़ी देर का क्या मतलब, 4 घंटे 15 मिनट? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मेरे ख्याल से 1 घंटा दलाइल दिए थे। तो लिहाजा आज जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को रिमांड बैक नहीं किया बल्कि पूरे का पूरा फैसला उड़ा दिया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस केस के अंदर बरी हो गए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सिर्फ 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं और इमरान खान इद्दत निकाह का केस है उसमें सिर्फ गिरफ्तार हैं। और ये अपनी नौयत का वाहिद फैसला है कि आज से पहले किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को जब रिलीफ मिला तो वो डील के नतीजे में मिला, वो रियासत के सामने झुक गया था, उसने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इमरान खान घुटने टेकने बगैर उसको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। और ये 8 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला सुनाया था उसके बाद जजेस जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए। लेकिन अगर एक चीफ जस्टिस खड़ा नहीं हो रहा, आमिर जो कादी फायज सीसा है, तो जनाब ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक ब्लैक डे है कि चीफ जस्टिस कादी फायज सीसा साहब जो हैं वो इस वक्त आइन और कानून के खिलाफ जाकर जो है वो खड़े हो चुके हैं। तो लिहाजा जनाब इस वक्त कोई सबूत नहीं थे प्रोसिक्यूटर के पास और बाद मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया गया। और जब ये फैसला सुनाया गया नारे तकबीर के नारे वहाँ पर लगाए गए और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804 के जनाब नारे लगाए गए। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में बरियत के बावजूद जो है वो जेल से रहाई अभी जनाब मुमकिन भी नहीं है। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाएं कदम करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब चूंकि उनको बरी कर दिया था, अब वो 9 मई के 8 केसेस में गिरफ्तार हैं। और जो लाहौर पुलिस ने भी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 25 मई को अडियाला जेल में जनाब डाली थी। तो लिहाजा वो अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन साइफर केस जो बड़ा खतरनाक केस था, बड़े खतरनाक चार्ज से, वो रियासत जो है वो ये क्लेम कर रही थी कि इमरान खान को इस केस में हम जो है फांसी दे देंगे, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन आज जनाब इमरान खान अब तक के सबसे खतरनाक तरीन केस से बाहर निकल आए हैं, बरी हो गए हैं, फैसला जो है उड़ गया है। और अब साइफर की जो है कोई वक़्त नहीं रही, साइफर का बयानिया दफन हो चुका है। लेकिन इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनदान इत्तेदाद अहसन साहब इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त हैं। जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान को जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें जो हैं वो खड़ी की हैं। इंसान को नरम मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि इससे बात नहीं करनी उससे बात नहीं करनी, ये इमरान खान को नुकसान दे रहा है। बात हर एक से करो, मानो किसी की भी ना। इमरान खान ने काफ़ी सख्त पॉलिसी बना ली है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जल्दी जेल से बाहर आता जनाब नहीं देख रहा हूं। ये जज जो हैं वो आज़ाद हैं, ये हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान सदर आसिफ ज़रदारी से मिलने और उससे जो है वो फ़ायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको ये पैगाम पहुंचाया गया है इत्तेदाद अहसन के जरिए कि अगर आप आसिफ ज़रदारी साहब के साथ मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं तो जनाब आपके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इमरान खान जो है वो इस वक्त किसी से बात करने को जनाब तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो केसेस उन पर बनाए गए हैं वो झूठे, वो गैर कानूनी और गैर आइनी थे। जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया था। ईदन निकाह केस वो भी उड़ गया था 29 मई को, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर दंगे फसाद खड़ा किया गया था वो जनाब सब कुछ आपके सामने था। तो इमरान खान को मैसेज पहुँचाया गया है कि अगर आप जनाब मुलाकात शुरू कर दें
दारी साहब से मिल लें तो फिर आपके लिए कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। अब जनाब एक और अहम खबर है, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। ये साइफर केस से भी शायद बड़ी खबर होगी कि शहबाज शरीफ जो है उनकी वजारती उज़्मा इस वक्त उड़ने जा रही है। जनरल आसिम मलिक साहब ने जनाब बाजी पलट के रख दी है। ये बाजी कैसे पलटी गई है, क्या मामला बना है, ये भी खबर आपके सामने जनाब रख सकता हूँ। नजम सेठी साहब उन्होंने दावा किया, वो कहते हैं कि बजट के बाद जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ की रुखसती नहीं होगी बल्कि कुछ और बड़ा काम हो रहा है जिसको बताया नहीं जा रहा। अब जो साइफर केस का फैसला आया है इसके बाद तो मजीद बंद कमरों के अंदर हिजानी कैफियत पैदा हो गई है और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब तो हम इमरान खान के बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान ने जो अडियाला जेल से जो स्ट्रैटेजी बनाई है उससे हमें पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया है। तो लिहाजा यहाँ पर रियासत के लिए कुछ बड़े खतरनाक चैलेंजेस जो हैं वो जनाब पैदा हो चुके हैं। तो आपने याद रखना है कि रियासत कभी सरेंडर नहीं किया करते, तो उनको सरेंडर करना महंगा पड़ सकता है। इमरान खान साहब मजीद ताकतवर हो जाएंगे तो वो सरेंडर तो नहीं करेंगे लेकिन जनाब इंगेजमेंट जरूर कर सकते हैं। आज जनाब हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में कैसे वापस आ रही है। खबर जनाब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के 3 रहनुमाओं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में के तीन हल्के हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वहाँ पर इन तीनों उम्मीदवारों को जो है वो जनाब जुर्माने का सामना भी करना पड़ा है। और जो इनके फॉर्म 45 हैं जनाब इससे पहले शोएब शाहीन और मुस्तफ़ा नवाज खोकर के वो भी मैच कर गए हैं और अब हलफ बर्दारी तक बात जाएगी। अगर हलफ बर्दारी तक बात जाती है तो फिर ये तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के 3 रहनुमा तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज जो इस्लामाबाद की 3 सीटों से जो है वो इलेक्शन जीते थे फॉर्म 47 के मुताबिक, आज उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमा करवाएंगे और अब उनको नजर आ चुका है कि जो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है अब उनका हमारे खिलाफ फैसला आ रहे हैं, ये सीटें हमारे हाथ में नहीं रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद ये 3 सीटें जीत जाएगी और फिर उधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जैसे साथी जजेस की जानिब से रिमार्क्स आए थे उसने चीफ जस्टिस कादी फायजा के रंग में भंग डाल दिया और फिर ये बड़ा वाज़ेह था आज के रिमार्क से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गैर कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीनी गई हैं, बल्ले का निशान से छीना गया है और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। ये जनाब बड़ी अहम तरीन बात है कि तीनों सीटें अगर निकल जाती हैं जनाब नून लीग के हाथ से तो फिर ये पूरे के पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है कि अगर ये तीनों सीटों पर धांधली हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बयानिया है वो दुरुस्त साबित होता है। तो लिहाजा अब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं अखलाकी तौर पर उनके लिए फिर वज़ीर-ए-आज़म रहने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। और फिर जनाब इस सारे हवाले से मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अब तीनों MNAs की दौड़ें लग चुकी हैं, ट्रिब्यूनल के सामने अपने फॉर्म 45 पेश करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं जहां कहते हैं कि ट्रिब्यूनल पर एतमाद नहीं है और केस ट्रांसफर किया जाए। एक झूठ को छुपाने के लिए आप अपने इर्द गिर्द ऐसा जाल बन रहे हैं जिससे निकल नहीं पाएंगे। ये जनाब जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना जवाब दिया है। तो नून लीग वहां से भागती हुई दिखाई दे रही है और लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इस बदतरीन वज़ीर-ए-आज़म के पीछे मजीद बैक नहीं कर सकती और बजट के बाद इस वज़ीर-ए-आज़म को शायद घर जाना पड़ जाए। जो ज़राए हैं हम इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं और फिर किसी और तीसरी कुव्वत को यहाँ पर आना भी पड़ सकता है। तो ये जनाब एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है इस मौजूदा हुकूमत को दिया गया है। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरान खान आ रहा है और वो जोरों शोर से आ रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंका ख्याल अल्लाह ने जमान पाकिस्तान जिंदाबाद।